Okay, children. So in the previous class we are done till Krebs cycle, and what we come to know is that in Krebs cycle actually there only one GTP is produced. One GTP is produced. GTP is equal to energy. It has somewhat equal to ATP's energy. So we can say that one GTP is equal to one ATP. Also, we have studied that is one Krebs cycle for one pyruvic acid. So if we start from one glucose, then one glucose is equal to two pyruvate, and two pyruvate will give two GTPs. Okay. Moreover, we also studied that in the glycolysis, in the process of glycolysis, we had obtained two ATPs net. Okay, net. So altogether, so far, that is by the end of the Krebs cycle, we got only 2 plus 2, 4 ATPs. Okay. Net only we got 4 ATPs, whereas we keep on writing that 38 ATPs or 36 ATPs are produced in the process of respiration. And we are not yet formed water. पानी तो बना ही नहीं है अभी तक. ठीक है. Glucose is used, but oxygen is not seen, and पानी बना ही नहीं है. है ना? Carbon dioxide बन गया है. So that means the process of respiration is not yet completed. ठीक है. There is something leaving, something is left behind here. Moreover, we have studied in glycolysis 2 NADH plus H ions are formed, and in Krebs cycle, that is 2 per glucose molecule. Okay, and in Krebs cycle, per glucose molecule 8 NADH are formed, NADH plus H ions, and 2 FADH ions, FADH plus H ions are formed. Okay, so what will happen to these? What will happen to these? Moreover, in the previous class, as I said, that NAD and FAD are actually hydrogen acceptors. So we can compare them just like a bucket or a container in which we can fill something. What we can fill in these FAD and NAD are actually filling hydrogen ion in them. We can fill hydrogen ion in them and keep. Okay. So FAD is hydrogen ion container, NAD is hydrogen ion container. These containers have certain limited number in the cell. In a cell, how big is the cell? Small. Cell is small, and in that the mitochondria are all the more small. And in a mitochondria, how many NAD can be there? How many FAD can be there? So that means these NAD and FAD cannot work for all throughout life. That means these are reusable. They have to be made reusable. And reusable बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? That is, if they are storing hydrogen and they are changing into NADH, or when hydrogen is adding into FAD and it's changing into FADH, there should be some process which is again used to get the same FAD and NAD back from them. That means these hydrogen ions which are filled into this container can be emptied out also. So where is this taking place? Where is this taking place? Now, again we'll come back to the fact that where is this entire process taking place? Where is this entire process taking place? This entire process of Krebs cycle had taken place in the matrix. We have already done this. That is, the glycolysis is taking place in cytoplasm, and Krebs cycle is taking place, glycolysis in cytoplasm, outside mitochondria, and Krebs cycle in matrix. Okay. So where is this particular thing? That is, Krebs cycle will result the formation of so many what you call NAD and FADH, which will be lying here. So suppose I show NAD by the red dots, NADH by the red dots, and FADH by blue dots. Then what will have inside the matrix? Inside the matrix, then after this end of these reactions, what will have? We will have large number of FADH. Okay, we'll have a large number of FADH here, and the same large number of NADH. NADH will be all the more because we have studied that NADH are formed 5 in compared to FADH are formed only 1 per molecule of pyruvate.
So that means there are more and more of NADH and there are lots of FADH also. Now what will happen to these? ये तो मैंने अभी आपसे कहा they are limited number, so they have to be emptied out. So where will you empty them out? कब करेंगे एम्प्टी, कैसे करेंगे एम्प्टी? तो इसी के लिए एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. Now where is the electron transport chain found? That is we are elaborating in this particular figure. So if you see, there are three reasons here: matrix, the inner membrane, and inner membrane space. This is the matrix. This is 1. This is 2. And this is 3. Suppose I change the color to purple. You can see 1 is here. 1 is here. 2 is here on the membrane. And 3 is here. Okay. So matrix we already done. And in matrix, what we add? We add lot of NADH and FADH. Now, इनको खाली करना है. खाली कैसे करेंगे? उसका नया रास्ता अभी हम पढ़ते हैं. So let me raise this off. And now we can see. See, when NADH ion takes the entry in the cytoplasm, they had to take the on the membrane, they had to take entry from here. ये क्या करेंगे? NADH जो होता है यहाँ आकर के split हो जाता है into NAD and H ion. Now H ions, as I said, they are very reactive. हाइड्रोजन जो है वो बहुत रिएक्टिव है, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो इधर आ जाएंगे नीचे, ठीक है, और H ion जो है यहाँ से बाहर निकल जाएंगे. So in this place it can push 2 H ions and 2 H ions. ठीक है, तो one NAD has this much of energy that it can push all together 6 H ions from the matrix to the inner membrane space. 2 here, 2 here and 2 here. करेक्ट कर लेना वहां पे अगर 4 लिख रहा है आपके बुक में, ठीक है. तो NAD will take entry from FMN, है ना, where it takes entry from FMN. So you can see here FMN will change into it will reduce, sorry, it is taking electron, तो electron लेने के बाद क्या होगा, ये reduce हो जाएगा, then it will give it so electron to FeS, तो oxidize हो जाएगा. तो in all these steps actually reduction of oxygen reduction and oxidation taking place in a series way, ठीक है, क्या कहते हैं सीक्वेंशियल वे, तो वो यहाँ पे चलता रहता है. तो ये देखिए, पहले FMN will change into FeS will then change into give its electron to ubiquinone will change into ubiquinone hydride. Then यहाँ आने के बाद when it gives its 2 electron, तो उसमें इतनी एनर्जी होती है कि it can also push 2 hydrogen ion from inside to outside, ठीक है. मैट्रिक्स से 2 और इलेक्ट्रॉन को वो कहाँ फेंक देंगे? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, सॉरी. अब फिर यहाँ से वापस आ गए, है ना, यूबिक्विनोन हाइड्राइड, फिर यूबिक्विनोन, फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पे आ रहे हैं साइटोक्रोम के अंदर, है ना. तो ये यहाँ आ गए, फिर यहाँ साइटोक्रोम C आया, फिर यहाँ पर आते हुए अगेन इन दिस स्टेप 2 हाइड्रोजन आयन कैन बी थ्रोन आउट. सो द एनर्जी ऑफ 1 NADH can be used for pushing 6 H ions to the intermembrane compartment. I think it is clear. So 6 को ये फेंकेंगे, लेकिन अगर FAD आएगा तो कहां से आएगा? FAD क्या है? FAD के अंदर एनर्जी थोड़ी कम है, तो FAD की एंट्री यहाँ से होती है. कहां से? इस जगह से. FADH जो है that will split into FAD at this place, और उसके हाइड्रोजन यहाँ से घुसेंगे, तो इसके 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 नहीं है 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन यही सीरीज को फॉलो करेंगे एंड यहाँ पर आकर के 2 मोर. तो 1 FAD कैन पुश 4 हाइड्रोजन आयंस आउटसाइड. ये याद रखना, NADH कैन पुश 6 हाइड्रोजन आयन एंड FADH कैन पुश 4 हाइड्रोजन आयन. नाउ आगे क्या होता है? ये हाइड्रोजन आयन जब है यहाँ से बाहर निकल गए, अब they had to re-enter because what will happen? अब इस पूरे प्रोसेस से क्या हुआ? हमारे NAD and FAD तो खाली हो गए, which can be reused in the process of Krebs cycle. NAD and FAD खाली होने के लिए अपन को पहली डिमांड क्या थी कि NAD and FAD खाली हो जाए. NAD and FAD खाली हो जाएंगे तो H ions का क्या होगा? तो H ions यहाँ भेज दिए कि भाई तुम अभी मैट्रिक्स से बाहर निकल जाओ,
हमारे को प्रोसेस करने दो, हमको काम करने दो। अगर तुम यहाँ पे बैठे रहोगे तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विल बी अफेक्टेड. So there are lot of H-ions here. Lot of H-ions are lying here. कहाँ पे? In the intermembrane space. यहाँ पे जो थे वो NAD, वो NADH, वो NAD में चेंज हो गया, FADH FAD में चेंज हो गया, which will reused in the Krebs cycle. तो कुछ कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ है ना, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा होता जा रहा है. हम चाहते थे कि FAD और NADH खाली हो जाए, खाली भी हो गए, और H-ions रिलीज हो जाए, रिलीज भी हो गए, और H-ions जाके कहाँ भर गए? द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. नाउ व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? आगे देखते. अभी क्या हुआ? नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. ये वाला डायग्राम देखिए. नाउ व्हाट हैपन हियर इज यहाँ पे क्या हो रहा है? खूब सारे H-ions जो उन्होंने पुश करे थे, ये आउटर साइड है, दैट इज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये मैट्रिक्स है, और ये वॉल है, इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पे खूब सारे H-ions शुरू इकट्ठे हो गए हैं, खूब सारे H-ions. ठीक है. डिफ्यूजन का प्रोसेस अपन ने पढ़ रखा. What diffusion says? The things always move from a region of higher concentration to lower concentration. So definitely diffusion will also start working here. लेकिन मेम्ब्रेन का क्या है ना कि वो आयंस को अपने में से जाने नहीं देते हर कहीं से. आयंस हैज टू टेक एंट्री ओनली फ्रॉम अ सर्टेन साइड्स, जिनको हम कहते हैं गेट्स. आयंस कैन टेक एंट्री ओनली थ्रू गेट्स और रिसेप्टर्स. Ions can take entry only through a certain gates or the receptors. So they have to take enter only from this particular place, जिसको हम ऑक्सीजोम कह रहे हैं, जिसको हम F0F1 पार्टिकल कह रहे हैं. मेम्ब्रेन में किसी किसी जगह पे F0F1 पार्टिकल होते हैं. If you remember the diagram of the mitochondria in the 9th class you must have done. तो यहाँ पे डायग्राम बनाया होगा अपने इनर मेम्ब्रेन, और उस कई सारी जगहों पे आपने F0F1 पार्टिकल्स बनाए होंगे माचिस की तीली की जैसे, ऐसे उठा करके. ठीक है. तो ये F0F1 पार्टिकल की इंपॉर्टेंस अभी हम पढ़ रहे हैं. तो F0F1 पार्टिकल क्या कर रहा है कि ये ही वो जगह है, गेट्स है, थ्रू विच द हाइड्रोजन आयन कैन एंटर फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स. वो हाइड्रोजन आयन वापस आएंगे बिकॉज द पोटेंशियल इज मोर हियर. देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन हियर एंड देयर इज जीरो पोटेंशियल. अभी यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयन बचे ही नहीं है. जो होते थे यहाँ पे वो इमीडिएटली NADH में और FADH में चेंज हो जाते थे. तो इन द इंटर मैट्रिक्स में तो कोई हाइड्रोजन आयन पड़ा ही नहीं. तो हाइड्रोजन आयन विल रश फ्रॉम दिस. कहाँ से आकर के आ रही है? F0F1 पार्टिकल. ड्यूरिंग दिस दे गॉट दिस मच ऑफ एनर्जी कि वो एक ATP और एक फॉस्फेट को जोड़ करके एक ADP बना दे. एक ADP और एक फॉस्फेट को जोड़ करके एक ATP बना दे. जब two hydrogen ion enters from intermembrane space to matrix, that has that much of energy which can be converted into one ADP into one ATP. एक ADP और एक फॉस्फेट को मिला करके एक ATP बना देंगे और H-ion बाहर अंदर आ जाएंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे काफी सारे H-ion आ गए. Now what will happen to these H-ions? Now last thing है, H-ions का रिडक्शन करना है अपन को, ऑक्सीडेशन करना है ऑक्सीजन के साथ में. तो H-ion जो है वो दो H-ions होंगे, वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके और वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे. तो ये अल्टीमेट प्रोसेस है, लास्ट स्टेप है. ठीक है. तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. आपको ये अच्छे से समझ आ गया है कि क्या हो रहा है पूरे प्रोसेस के अंदर. इसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है. तो इसी जगह पर आकर के ATP बन रहे हैं ना. अब याद रखिए आप, एक NAD से कितने हाइड्रोजन आयन गए थे बाहर? एक NADH प्लस H-ion could push 3 pairs H-ion, सॉरी 6 H-ion, और हम कह सकते हैं 3 pairs of H-ions. और एक ATP बनाने में एक पेयर की जरूरत पड़ती है. तो एक्चुअली एक NAD क्या बना पाएगा? एक NADPH, एक NADH, सॉरी एक NADH will be able to make 3 ATPs. एक NADH will be able to make 3 ATPs. और एक FAD ने कितने फेंके थे बाहर?
एक FADH प्लस HINs ने कितने प्रोटॉन्स बाहर फेंके? HIN को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो उसने 4 प्रोटॉन्स बाहर फेंके। हम इनको कह सकते हैं टू पेयर्स ऑफ HIN, और क्योंकि एक पेयर HIN से एक ATP बनता है तो 2 पेयर से कितने बनेंगे? 2 ATPs। एक FADH 2 ATP बना सकता है, एक NADH 3 ATP बना सकता है। ये आपको समझ आ गया होगा शायद, है ना? वैसे मैं तो ये सोचूंगा कि आपको आ ही गया है समझ में, क्योंकि आपने तो पूछा ही नहीं है, क्योंकि आपको तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप तो जाना ही नहीं चाहते। आपको तो लगता है कि सर से ज्यादा तो हमको आता है, तो फिर हम भी उस हिसाब से देखते हैं कि हमको तो बच्चों से कम आता है, हम कैसे पढ़ाएंगे? एनीवे, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि क्या पता आपके पास नेटवर्क नहीं हो इसलिए आप नहीं पढ़ रहे हो। So if we take the calculation, if we make the calculation, what will happen? देखिए, हमने देखा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक ग्लूकोज से जब एक पायरुवेट बना, दो पायरुवेट बने, तो इसमें हमको क्या मिले? व्हाट वी गॉट 2 ATP। तो हमारा खर्चा हो गया, है ना? तो मैं यहाँ पे तो मैं लॉस लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं गेन लिख देता हूँ। तो हमारे 2 ATP का खर्चा हुआ एंड 4 ATP का हमको फायदा हुआ। और इसके अलावा क्या बना? NADH प्लस HINs। ठीक है। नाउ पायरुवेट से क्या बना है? ग्लाइकोल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में यहाँ हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन में हमने पढ़ा। फिर अगेन हर एक पायरुवेट से एक NADH बन रहा है, तो 2 पायरुवेट से कितने बनेंगे? क्योंकि वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी 2 NADH प्लस HN निकले। ठीक है। फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम पूरा का पूरा क्रैब्स साइकिल के अंदर चल करके आएगा। तो क्रैब्स साइकिल के अंदर क्या बन रहा है? क्रैब्स साइकिल के अंदर क्या बने? हमको मिले 8 NADH, है ना? प्लस हमको क्या मिल रहा है? 2 FADH। ठीक है। तो ये हुए। अब इन सारी चीजों की जो हमको मिल रहा है उनसे हमको क्या करना है? हमको NAD से हिसाब लगाना है। एक NADH जो होता है वो 3 ATP के बराबर है, और एक FADH जो है वो 2 ATP के बराबर है। तो आप इसको हिसाब में लेकर के और बता दीजिए कि टोटल कितने वो बन रहे हैं, है ना? तो वी आर डन। हमने डाला, तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास टोटल बने 4 ATP। को हटा देता हूँ, उस तरफ कर देता हूँ, थोड़ा जगह बन जाएगा। तो हमारे पास बने 4 ATP। फिर क्या बन रहे हैं? 2 NADH थे ना, इंटू 3 ATP, तो टोटल हो गए 6 ATP। ओके। फिर डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है? अगेन वहां पे 2 NADH बने इंटू 3 ATP, तो हो गए 6 ATP। फिर क्रैब्स साइकिल, तो वहां पे 6 NADH बने इंटू 3 ATP, दैट इज 18, और 2 FADH बने इंटू 2, है ना? तो ये हो गया 4, और 2 बने अपने पास GTP, तो वो हो जाएंगे 2 ATP के बराबर। तो हिसाब लगा लेते हैं टोटल।
ठीक है, कितने हुए देखिए, 6 और 4 10, 16, 16 और 4 20, 20 और 22, 22 और 18 हो गए 40। 40 में से 2 एटीपी हमारे खर्च हो गए थे, कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस में, तो हो गए 38 एटीपी। 38 एटीपी में से 2 एटीपी हमारे खर्च हो जाते हैं, 38 एटीपी से 2 एटीपी हमारे खर्च हो जाते हैं जब we are pushing this NADH2 which are formed in the glycolysis into mitochondria। जब इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसाएंगे तो 2 एटीपी और खर्च हो जाते हैं, तो 38 एटीपी जो है -2 एटीपी, that is 36 ATP net। One molecule of glucose will be able to generate 36 ATPs net। So this is what the total accounting। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में हमने पाया कि 1 ग्लूकोज जो है दैट कैन रिजल्ट 36 एटीपी नेट। खर्चे वर्चे को सबको निकाल लीजिए, खर्चा कहाँ हुआ, 2 एटीपी का खर्चा तो हो गया ग्लाइकोलाइसिस में, और 2 एटीपी का खर्चा हो गया ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट्स को माइटोकॉन्ड्रिया में लाने के लिए। 4 एटीपी का खर्चा हो गया। 40 बने थे, 40 में से 4 को निकाल दीजिए तो 36 रह जाएंगे। अब ये आपको सोचना होगा कि आप किस हिसाब से लिख रहे हैं उसको। नाउ अब हमारा यहाँ बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऐसे नहीं होता हमेशा। It is not so that we are always be able to get 38 ATP और 36 ATP जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया। Why? तो उसकी कुछ कंडीशंस है। द कंडीशंस क्या है, देखिए कंडीशन क्या है कि देयर इज अ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विदिन विथ वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट इन द ग्लाइकोलाइसिस। ये जरूरी है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पहला ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट और डाइऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट बनेंगे। देन उनका क्या कहते हैं डाइग्लिसरिक एसिड बनना है ना, देन डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना है, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनना है, फिर पायरुवेट बनना है, फिर उससे कोएंजाइम ये बनना है, फिर सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सेनाइल कोएंजाइम, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, ये सब सीक्वेंस में बनने हैं वन आफ्टर अदर। अगर इनमें कोई भी स्टेप रह गया तो प्रोसेस में उतने आपको वो नहीं मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब रह क्यों जाएगा कि देखिए बॉडी को कई बार कई अलग अलग तरह के केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो सपोज बॉडी में रिक्वायर समवेयर, अगर मान लीजिए उसको सक्सेनिक एसिड की जरूरत है, कीटोग्लूटारिक एसिड की जरूरत है, तो वो वहां से निकाल सकते हैं ना उसको। वो बोलेंगे यार तुम कहाँ जा रहे हो, हमारे को तुम्हारी जरूरत है, इधर आ जाओ। तो अगर वो आगे तो फिर इनके आगे के प्रोडक्ट तो बनेंगे ही नहीं। तो वहां के जो whatever type of ATP could be generated that will not be there, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखा है कि है ना वो ऑर्डरली फैशन में हो, कोई बीच में गायब नहीं हो जाए या फिर कोई जंप नहीं मार जाए, है ना, तो ये जरूरी है। तो देखिए देयर इज अ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पाथवे ऑफ फंक्शनिंग विद वन अनदर, वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा क्या है, द NADH synthesized in the glycolysis is transformed into mitochondria। ये जरूरी है कि वो जो NADH बने हैं वो कहीं और यूज नहीं हो जाए, बल्कि वो कहाँ जाए, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाए, क्योंकि 6 एटीपी इनसे जनरेट होने हैं 2 NADH से। ठीक है, तीसरा, नन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ द पाथवे यूटिलाइज इन सिंथेसाइज अदर कंपाउंड। ठीक है, ये जो मैंने कहा था, तो वो भी जरूरी है। और चौथा, ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड। ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है उसमें केवल ग्लूकोज को यूज करना है। अगर आप फैटी एसिड को यूज करेंगे, अमीनो एसिड को यूज करेंगे या कुछ और चीज को यूज करेंगे तो द एटीपी प्रोड्यूस विल बी लेस और मोर। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर, है ना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में डालता हूँ कि भाई हमने ग्लाइकोलाइसिस का रेस्पिरेशन की हम रिएक्शन लिखते हैं, ये वाली C6H12O6 plus 6 oxygen gives 6 carbon dioxide plus 6 molecule of water।
एक रिएक्शन. But in body we have seen it is completed in more than 50 reactions. क्यों? 50 रिएक्शन कहाँ से गई, कहाँ गई है? बॉडी एक ही बार में क्यों नहीं कर लेती है इसको ऐसे? जैसे आप ग्लूकोज रखिए, है ना, ग्लूकोज रखिए, आप घर में ऐसे ही कर सकते हैं, ग्लूकोज रखिए एक पेपर के ऊपर और उसके बाद उसको माचिस लगा दीजिए तो ग्लूकोज जलने लग जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी रिलीज एंड लॉट ऑफ हीट विल बी रिलीज, लाइट भी निकलेगी, शायद रोशनी भी. तो फिर बॉडी इतना इतना चौंचला क्यों कर रही है? पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज बाई 6 और 1,6 बाइफॉस्फेट. इतना कुछ करने की क्या जरूरत है भाई? सीधा सीधा बना लो ना. Why respiration completes in so many small steps? ये हमारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को अभी 2 मिनट बचे, तो आज तो मैं नहीं कर रहा, है ना. आई एम नॉट कीपिंग वेरी वेल ऑल्सो, येट आई एम टीचिंग. आप में से कई बच्चे जो है अच्छे भले स्वस्थ हैं, फिर भी वो रजाई में बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे, है ना. खैर, पढ़ना नहीं लिखना, पढ़ना आपकी मर्जी है. देखिए, खाना अगर नहीं दिया जाएगा तो आप कह सकते हैं, अगर हम क्लास नहीं लगाएंगे तो आपके पास में 1000 कारण होंगे बोलने के लिए, अरे सर हम तो आए थे, बैठे थे, आप तो आए नहीं, आपने क्लास ही नहीं ली. So I had taken your class, I have recorded it also, so that I can show it to my principal. जब मैं मेरे से पूछेंगे कि भाई आपने क्लास नहीं ली फादर, ये देखो मेरे पास तो रिकॉर्डेड है ना, टाइम भी आएगा, सब कुछ आएगा. So that is how I had done it. Okay, good day children. Thank you. अरे प्रतिष्ठा, तुम आ गई थी क्या? कब आए तुम? जब भी तुम आए क्लास खत्म होने के टाइम पे. So with this I come to the end of my class.